question that come to your mind might be that uh, in the unseen or in the exam you might be asked um, to to handle a situation where trainer goes for listing, right? So you should be able to, uh, uh, elaborate the issues related to going for listing, right? So issues related to going for listing is that you should be familiar with the initial public offering concept. Then you should be familiar with the compliance regulation which you will have to follow if you would become a listing company. And again, you would be mentioning that if you are a small company, then going for the listing probably would not be a wise option, because when you would go for a stock exchange, listing with a stock exchange, it would be a expensive proposition and you will have to pay a lot of fees, right? And then there would obviously be a dilution of the ownership. Currently we have learned that the two partners, the two brother and sister, although they are the founding members of the trainer, but they own only the 20%. 80% of the shares of trainer are being owned by the other people. So if you go for listing, these the current two, the executives, they might even lose their ownership further. Then the trainer will have to pay to generate the financial. Obviously, we know that when you would be a listed company, you will have to publish your reports, and in order to publish your report, you will have to hire the audit firms. They would be doing the audit and then generating the report. So there is a cost associated with all of this activity. IPO generate the publicity. This is a benefit, like you would be getting, like if your company would go for IPO. Um, this would make your company probably a little more known to the people in the market. Then the trainer may lose its autonomy. uh, Currently, the management is within these two guys, the brother and sister, Asif and Mariam, but and they are like in a position to take all the decisions. But if you would go public, then obviously you would be having a board of directors and a management structure. The listed companies are required to have a board of directors consisting of the executive and the non-executive directors. And then the decisions, especially the capital investment decisions and some strategic decisions, require the approval of the board of directors. So these brother and sister, Asif and Mariam, might be losing autonomy to taking the decision. Easy to raise the finances, which could be used for R&D or to fund the capital. Again, this is an advantage of going for the listing. You would be able to raise the finances, and you could do through issuance of the new shares, or you might, if you got yourself listed, then you might issue the rights share, and the various type of, you could even float the bonds to raise the loans from the capital market. Currently, the current in the current structure, obviously the biggest, the disadvantage of not being listed is that you don't have the liberty to raise the finances from the market. The only option you do have is that you will have to go to the financial institution, such as the banks, to raise the finances. And we have already learned from our knowledge of advanced financial reporting that the the bank loans are comes with some conditions, and obviously some liabilities, which the firm liabilities that the organization have to pay. And there are obviously some advantages associated with the equity, that you won't have to pay the returns every year, but the expectation of the equity
holder or the shareholders are higher, like they would be expecting the more returns on their investment, and the reason is that they are taking the risk. So it will help to determine the true value of the company. Once your company would be listed, the value of the company would be reflected through the shares. So it will give a chance to do acquisition using its share instead of cash. Like in a current structure of the organization, if a trainer goes for the acquisition of another company, obviously they don't have the public of their shares, like which are being publicly offered. So the chances are that they would be doing the acquisition through the cash consideration. But if you are a listed company, in the listed companies, most of the times the consideration is paid in terms of the shareholdings, right? So increased confidence of investor, suppliers, and customers, as listing requires rigorous due diligence. Obviously, once your company would be listed, we know that the listed companies are subject to the rigorous regulation by the regulatory body, the Security and Exchange Commission of that jurisdiction. So the investors and suppliers and your customer would be more comfortable doing business with you, because they would know that you have been through a stringent process, and your company, all the information which has been published is audited, and it is credible. So these are some type of the issues. And if you see any question, the question could the examiner could ask you the question in any shape. It might be like having any kind of situation in the question. But if you are familiar with these concepts of going for listing, you would be able to respond to the question accurately, right? Then we have already studied though about the ecosystem. Uh, the Porter 5 Mose model, I could not like create it, but I would ask you to tell me that what do you think that what are the uh, what are the what are the main sorry, what they call that, those the five forces which Porter thinks that would determine the uh, competitiveness of your industry. So someone maybe would like to contribute. Those are Hmm? uh, those are new entrants, rivalry among competitors and substitutes, power of buyers and power of suppliers. Hmm. Okay. So can anybody tell me, Usman? Uh, could you जी जी please सर that सर entry to इस barriers are higher, or those barriers एंड are low? सर एंट्री जो इसमें है ना मतलब इसमें काफी ज्यादा कम है रीजन यही है सर ये ह्यूमन नेचर का बिजनेस है Good. कि Good. यहाँ पे किसी का जरूरी नहीं है कि मतलब कोई कह लें कि कैपिटल इंटेंसिव नहीं है यहाँ पे कैश लेके नहीं आने की जरूरत नहीं है यहाँ पे स्किल लेके आए और Mhm. मार्केट में आ जाएं तो यहाँ पे एंट्री बहुत इजी है तो Exactly. हाँ The entry to barrier are low, and the reason is that you don't need to have a capital requirement. You don't need to invest a lot of capital. The operating expenses, most of your operating expenses are variable. This information was also given in your present. The most of your expenses are variable, like your hotel expenses, your traveling expenses, the fee of your trainer, and the only the fixed expenses are the expenses which are being incurred to manage your head office, right? Entry to barrier are low. And then can somebody Haris, you tell me that what is the how much is the power of the supplier in this industry, keeping in view the information that we have studied
in this pre-scene? सर बेसिकली तो क्या कहते हैं कोर्स ट्रेनर्स, इसके अगर हम सप्लायर्स की बात करें तो जो ट्रेनर्स हैं वो हैं, आपके जो होटल हैं वो हैं, ठीक है, बड़े जो सप्लायर्स नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, देखो सप्लायर यहाँ पे है, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इंडस्ट्री है, one of the supplier of the services is trainer, right? And the other one which the information of which has been given is the master class. But as if we I mean read about the industry, we have been told that there are too many, I mean the service provider, but there are not so many who are prominent in this business, or like they are notable executive training service provided. So the suppliers are like there is a the number is not like there are only one or two supplier of the executive training company. There are a lot of suppliers in the industry. So one of the supplier is the trainer. So if the trainer would have been the only company, or it might have been among the only 2 or 3 companies of the executive training supplier, then it might be having a power to control the industry. Like here, if we talk about the telecommunication services in Pakistan, landline, if we talk about the landline, PTCL for a long time was enjoying the what they call, there is a terminology अभी मेरे ज़हन से निकल रही है, कौन, So monopoly. monopoly, exactly, monopoly. So but here it is not like that. Trainer is the only service provider, so the supplier, the power of the supplier is again low. It is not, they are not like having um, um, too much power like this शुरू सर sorry, बताएं। सर ये थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है यहाँ पे। हारिस की जो बात थी कि सप्लायर तो हम देखेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रेनर या इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडस्ट्री, तो उस केस में तो जो प्राइमरी सप्लायर है वो तो ट्रेनर्स हैं, और ये जो हम बात कर रहे हैं ये तो मोर अबाउट राइवलरी अमंग द कंपेटिटर्स की बात नहीं है कि ट्रेनर है और कुछ और भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं और उनकी आपस में जो वो कंपेटिटिव एनवायरनमेंट बन रहा है वो तो उसकी बात नहीं है। वो कंपेटिटिव एनवायरनमेंट भी बिल्कुल उसी पे आता है कि उनकी आपस में जो कंपेटिटर्स हैं उन्होंने आपस में अलायंस की हुई है और दे आर कंपीटिंग विद ईच अदर। वो उसकी मैं बता देता हूँ। जो रिवेलरी होती है ना वो तब ज्यादा होती है जब मार्केट का साइज बहुत बड़ा नहीं होता और सप्लायर, नंबर ऑफ सप्लायर्स पे ही आ गई ना। अब इनमें कंपेटिटिव रिवेलरी ज्यादा होगी क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ सप्लायर्स ऑफ द सर्विसेज देयर। लाइक आप देखें ना पाकिस्तान में अगर आप गाड़ियों के देखते हैं, if you would take the example of these automotive suppliers, तो कुछ अर्सा पहले तक तो 2-3 थे and they had the monopoly, right? उसके बाद फिर जब ये इंपोर्ट शुरू हुई तो सप्लाई बढ़ गई, ठीक है। तो फिर अभी तो और भी दूसरे मैन्युफैक्चरर भी आ गए हैं, तो अब जैसे जैसे नंबर ऑफ सप्लायर्स बढ़ रहे हैं तो उनमें अब मार्केट शेयर को लेने के, मार्केट का साइज वही है, मार्केट शेयर को लेने के लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो जो पावर ऑफ सप्लायर होती है ना वो इसमें वो वाले सप्लायर नहीं है जो आपके सप्लायर है। आप एज ए कंपनी आपको सप्लायर लिया जाता है। आप देखें इफ यू विल गो टू द इस चैप्टर के, अगर आप लोगों के पास बुक आपने रखी हुई है ना तो इस पे आपके जनाब आ जाता है आपके पेज नंबर 4 है E2 का ना, तो उसमें आप पावर ऑफ द सप्लायर पढ़ेंगे ना। पावरफुल सप्लायर कैन चार्ज हायर प्राइसेस फोर्सिंग डाउन द प्रॉफिट मार्जिन, राइट? ठीक है। आपका अगर आप उसको उस तरह से अपने सप्लायर्स का लेते हैं वो तो आपका है ही, लेकिन वो इंडस्ट्री में ये जो सप्लायर आप सप्लाई कर रहे हैं, हाँ इसमें उस तरह से भी देख सकते हैं वैसे, जैसे आप कह रहे हैं कि आपके सप्लायर्स जो है वो भी उनकी पावर कितनी है, तो दैट वुड आल्सो लाइक, लेकिन ये इससे कंपेटिटिवनेस जो है वो तो आपकी प्राइस को फिर अफेक्ट करेंगे ना। लेकिन इसमें जो ज्यादा रेलेवेंट बनता है ना कि सप्लायर मार्केट में कितने हैं, सप्लायर की पावर कितनी है। आपका भी हो सकता है, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं या हारिस भी कह रहे हैं ना
that is also like maybe हारिस जरा एक्सप्लेन करें आप जो बात कर रहे थे। सर मेरा जो माइंड था वो ये था कि क्या कहते हैं, जो ट्रेनर है उसके जो मेन सप्लायर्स हैं वो होटल्स हैं बेसिकली, और आपके जो ट्रेनिंग मैनेजर्स हैं बेसिकली वो हैं आपके सप्लायर्स, क्योंकि वो अबंडेंस में है। तो इस वजह से उनके बीच में राइवलरी है जिसका अल्टीमेटली फ़ायदा जो है वो ट्रेनर को हो रहा है। और अगर आप इसमें लास्ट में पढ़ें जो इनके कमेंट्स आए हैं, देखें वो कमेंट्स भी इस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि क्योंकि उन लोगों का जो बेसिकली पे स्ट्रक्चर है, ये जो स्केड्यूलिंग है वो इतनी पुअर है कि अल्टीमेटली सारा जो मलबा है वो ये ट्रेनर्स के ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो मैं इसको इस एंगल से लेके चल ये रहा भी था। ठीक है आपका कि जो ट्रेनर वो सप्लायर ऑफ द ट्रेनर जो हैं वो उनमें होटल्स आ जाते हैं, उनमें आपके जो आपने आपके जो ट्रेनिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपने रखे हुए हैं वो आपके परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, आपने उनको ऑन डिमांड पे रखा हुआ है। तो उनकी पावर क्योंकि वो मार्केट में अवेलेबल है, उनकी पावर तो वो आपके प्रॉफिट मार्जिन को वो भी अफेक्ट नहीं कर सकते। तो ये उस एंगल से ये भी इसका ठीक है। तो लेकिन जो मैं आपको दूसरा भी बता रहा हूँ कि पावर ऑफ सप्लायर की कितने सप्लायर मार्केट में हैं, दैट वुड आल्सो बी लाइक डिटर्मिनिंग द कंपेटिटिव एनवायरनमेंट। लेकिन ये जो आपका एंगल है ये भी इसमें ठीक है, दैट आल्सो मेक सेंस। बेसिकली जो हमारा पोर्टर का 5 फोर्सेस का मॉडल है ना, उसका बेसिकली होता है कि जी प्रॉफिट पोटेंशियल ऑफ द इंडस्ट्री कितना है, ठीक है जी उसमें। तो और जो आप पॉइंट बता रहे हैं दैट मेक सेंस, वलीद ने भी उसको इन्फोर्स किया है, तो दैट इज आल्सो अ करेक्ट परसेप्शन। तो पावर ऑफ द बायर इसमें वो क्या है, अब मैंने तो खैर इधर लिख ही दिया है। आप आपके ख्याल में क्या है पावर ऑफ द बायर, बताएं। ये बायर है, पावर सप्लायर नहीं है। सर मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगा कि ये जो हमने लास्ट में पढ़ा है ना कि जो बेसिकली जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ये जो जिसमें इसने टेलीकम्युनिकेशन का भी जो है रेफरेंस दिया है, कंपनीज जी पैरास्टेटल कंपनीज, तो ये अपने अंदर ये दीज आर लाइक जाइंट कंपनीज, मोनोपलीज हैं अपने अंदर ही। तो दे हैव लाइक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन डिटर्मिनिंग के कौन सा कोर्स लिया जाए, किस प्राइस के ऊपर लिया जाए। इवन समटाइम्स they can dictate like the location, the venue, etc. the amenities, associated amenities क्या provide की जाएंगी। तो ये सारा कुछ जो है वो डिक्टेट कर सकते हैं। दैट इज व्हाई दे हैव अ वेरी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इस मॉडल के ऊपर। अच्छा, इसमें बिल्कुल ये आपकी बात उस तरह से अगर देखें तो पैरास्टेटल्स का बिजनेस कितना बड़ा है उस पर वो डिस्काउंट ले सकते हैं, लेकिन हमें बताया गया है कि जी 300 ट्रेनर हैं आपके हेड ऑफिस में, काफ़ी सारे लोग हैं, मेरे ख्याल 80 उन्होंने बताए हुए हैं, आपके पास 30 कोर्स मैनेजर हैं। इट मीन्स दैट कि आपके पास काफ़ी बड़ा क्लाइंटाइल है। इसका मतलब है कि काफ़ी जो मार्केट में बायर्स हैं उनकी काफ़ी तादाद है, कोई एक बायर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए बायर जो है वो प्रोबेबली प्राइस को उस तरह से डिक्टेट नहीं कर सकते, लेकिन द पॉइंट इज टेकन लाइक कि जैसे आपने बताया है कि जो बड़े बायर हैं पैरास्टेटल्स, और दूसरा उसमें एक और फैक्ट है विच वुड बी कॉम्प्लीमेंटिंग दिस आर्गुमेंट कि जी आपका रिलायंस है रिपीट बिजनेस पे। तो रिपीट बिजनेस पे अगर कोई बड़ा क्लाइंट है तो प्रोबेबली दे कुड लाइक इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द कोर्सेज, राइट। लेकिन ये एक फैक्ट है कि मार्केट में बायर काफी ज्यादा हैं। इट इज नॉट लाइक दैट कि जी कोई चंद एक बायर्स हैं, ठीक है। तो बायर ज्यादा हैं। तो इसके बाद रिवेलरी अमंग कंपेटिटर्स वो ज्यादा है। जैसे हम रिपीट बिजनेस पे रिलाई कर रहे हैं, सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द रेवेन्यू ऑफ ट्रेनिंग कंपनीज कमिंग फ्रॉम रिपीट बिजनेस, सो देयर मस्ट बी इंटेंस कंपटीशन अमंग कंपेटिटर्स, क्योंकि आपके मार्केट में जो क्लाइंट्स हैं उनको आपके सारे जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो उनको अप्रोच कर रहे होंगे, तो दैट मस्ट बी क्रिएटिंग अ एनवायरनमेंट ऑफ कंपटीशन। सो इसमें यानी कि जब जितना ज्यादा कंपेटिटिव एनवायरनमेंट होता है उतने ही आपके प्रॉफिट मार्जिन बेसिकली कम हो जाते हैं, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट, आप इस पे थोड़ा सा दाऊद आप बताएं, आपका क्या ख्याल है, सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं नहीं है? सर सब्स्टिट्यूट तो अवेलेबल हैं, लाइक पब्लिक कोर्सेज तो हर कोई ऑफर कर रहा है, तो पब्लिक कोर्सेज आर सेम एवरीवेयर। लेकिन
bespoke कोर्स जो ये कितना बेटर डिजाइन कर सकते हैं, दैट्स देयर एबिलिटी के वो उनको डिफरेंशिएशन में लेके जाता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैंने भी इस पे ये लिखा है। अच्छा, अब मुझे आप इसका मैंने नहीं बनाया था क्योंकि ये मैं तो अभी बाद में करना था। ये वाली चीज़ हम करते होते हैं जब ये बुक पूरी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आई फेल्ट दैट कि जी आप थोड़ा सा आप लोगों को शायद हो रहा है कि हम इसको इस वाले एस्पेक्ट को उतनी तवज्जो नहीं दे रहे, तो आई स्टार्टेड इट अर्लियर, अदरवाइज आई वुड हैव प्रिपेयर्ड। ये जितने भी आपकी बुक्स में से हम वी विल लाइक चैप्टर वाइज जाएंगे, और हम ये जो काम कर रहे हैं ना, ये आपके ये सारे चैप्टर्स अप्लाई करेंगे अगली क्लासेस में, क्योंकि जब फिर बुक नहीं पढ़ रहे होंगे ना, तो वी विल गॉट सफिशिएंट टाइम टू डू दिस एक्सरसाइज। उसमें डिस्कशन भी होगी तो आपको ये समझ आ जाएगी। अभी आपको देखें, अगर आप, अच्छा फिर मैं आपसे अगर पूछूं कि जो आपकी 3 जेनेरिक स्ट्रेटजीज हैं, तो ट्रेनर की कौन सी है स्ट्रेटजी, जिनमें से आपकी कॉस्ट लीडरशिप है, डिफरेंशिएशन है, और फोकस डिफरेंशिएशन है। तो उस्मान बताएं कि ट्रेनर का जो अभी 3 जेनेरिक स्ट्रेटजीज के, पोर्टर की 3 जेनेरिक स्ट्रेटजीज लगाएं, तो पोर्टर की कौन सी 3 जेनेरिक स्ट्रेटजीज ट्रेनर पे अप्लाई होती है? हेलो, आवाज आ रही है? अच्छा, आप बाबर बताएं। रिसर्च में मेनली फोकस है, क्योंकि मेनली तो नहीं है लेकिन अपार्ट यू कैन से अ सिग्निफिकेंट पार्ट इन if we consider bespoke courses and नहीं, also मैं इसको differentiation. बिल्कुल, आपको हिंट ये है कि इसके साथ उसको रिलेट करना है, इस वाले के साथ। अच्छा, जो अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट वाला भी वहाँ पे कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि आपके पब्लिक कोर्सेज जिनको सब्सटीट्यूट आराम से किया जा सकता है, वहाँ पे यू वुड हैव टू टेक द कॉस्ट लीडरशिप। प्रोबेबली आप compete कर रहे होंगे ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइजेज, राइट, पब्लिक कोर्सेज में। एंड bespoke कोर्सेज में यू कुड हैव अ प्राइस डिफरेंशिएशन। सो 2 स्ट्रेटजीज को कर रहा है वो, डिफरेंशिएशन को भी कर रहा है और आपकी कॉस्ट लीडरशिप को भी कर रहा होगा। क्लियर है ये बात? क्लियर है सर, क्लियर है। उसमें इस हाँ एस्पेक्ट को मैंने छोड़ दिया था। हाँ। तो अब मुझे इकोसिस्टम का इसका बताएं, इसका मैं डाल भी दूंगा इसमें। हमने इकोसिस्टम में पढ़ा था ऑर्केस्ट्रेशन और कम्प्लेक्सिटी, ठीक है। ऑर्केस्ट्रेशन की डेफिनेशन को मुझे बताएगा क्या थी, ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब क्या था? मेरा ख्याल सर उस्मान का ना वो अफ्तारी का टाइम तो नहीं हो गया? सर प्रोबेबली हो गया होगा। हाँ, तो मेरा ख्याल ठीक है, फिर इस तरह करते हैं, नहीं इसको अभी टाइम भी खैर हो गया, छोड़ दें। दिस इज इम्पोर्टेंट डिस्कशन, और इसको मैं आपके इधर मॉडल्स डाल भी दूंगा ये, और ये वो स्लाइडें आपके साथ शेयर कर लूंगा। लेकिन अब अगली क्लासेस जब हमारी होंगी ना, तो उनमें सिर्फ ये मॉडल्स अप्लाई होने हैं। आज आपके ये बुक तो ख़त्म हो जानी है, E2B और P2B, इंशाल्लाह सैटरडे को वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो अगली क्लासेस में सारियों में हमने ये करना है, और उसके साथ अब आपको जो असाइनमेंट्स भी मिलनी है ना आज, वो भी ट्रेनर के मुतल्लिक मिलनी है। अगला पूरा महीना हमारी जितनी भी क्लासेस होनी है ना, 4-5 जितनी भी रहती हैं, वो कम्प्लीटली फोकस होंगी इन पे, और आपकी असाइनमेंट्स भी इस पे होंगी। तो यू नीड टू पुल अप योर सॉक्स। ये अगर आपको पूरी केस स्टडी की, अब आपको समझ आ गई है कि केस स्टडी को पूरा समझना और पढ़ना डिटेल में क्यों ज़रूरी था, क्योंकि आप उसको समझे बगैर ये वाले मॉडल्स नहीं लगा सकते। जो रिलेट करना है ना केस स्टडी के साथ चीज़ों को, वो यही रिलेट करना है आपका एग्जाम में। कि अगर आपको पूरी केस स्टडी की सारी चीज़ें आपने एक्सटेंसिवली पढ़ी हुई हैं, और आपको पूरे उसके बिजनेस मॉडल की समझ है, तो फिर आपके लिए ये सारी जो क्वेश्चन, क्योंकि इसी तरह के आने हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कल किसी ने मुझसे पूछा था, उस पर मैं आपको असाइनमेंट दूंगा कि आपने ट्रेनर का प्रोजेक्ट देखें। जैसे आपको मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने पिछले दिनों एक असाइनमेंट की थी जिसमें एक्विजिशन का था, ठीक है जी। आप एक्वायर कर रहे हैं कंपनी को, तो उसकी ट्रीटमेंट का था। आप सिर्फ उसमें जहाँ पे कंपनी GS लिखा हुआ था ना, ट्रेनर कंपनी को वो बना लें आपकी जो एक्वायर कर रही है, और GS या जो भी वो नाम लिखा हुआ था उसकी जगह पे ABC कंपनी लिख रहे हैं, तो वो पूरे का पूरा क्वेश्चन आप पे अप्लाई हो जाएगा। कोई चीज उसमें नहीं है ऐसी जो कि केस स्टडी से रेलेवेंट होगी। आपने ट्रीटमेंट आप ने देखा था कि रिस्पेक्टिव ऑफ योर बिजनेस मॉडल एंड ऑल दैट,
आपका जो कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन थी वो सेम रहेगी। डू यू एग्री विद मी ऑन दैट पॉइंट, जिसमें हमने फेयर वैल्यू और सारा वो पढ़ा था कि उसकी बुक वैल्यू क्या थी, फेयर वैल्यू क्या थी, सिर्फ उसमें कंपनीज के नाम चेंज कर दें तो वो एग्जैक्टली ट्रेनर पे भी वही लग जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने याद सर वो रखें। होटल वाली होटल वाली, की हाँ हाँ, उसमें सिर्फ नाम चेंज कर दें हाँ आप, जी पूरा वो अप्लाई हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट आपने इस तरह से समझना है, कॉन्सेप्ट को समझे, नाम उसमें सिर्फ अगर मैं चेंज कर दूं ना तो वो पूरा क्वेश्चन आपका ट्रेनर पे वैसे ही अप्लाई होता है। कोई उसमें ऐसी चीज नहीं थी कि जो उसके स्पेसिफिक टू प्री सीन हो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इन जो स्पेशली टेक्निकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, वो ज्यादा इसी तरह के होते हैं, ये स्पेशली F2 से रिलेटेड, वो इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंपनीज बिजनेस मॉडल होते हैं मोस्टली। हाँ, लेकिन आपके E2 और P2 के जितने भी ज्यादा आ रहे होते हैं उनमें आपने बहुत ज्यादा रिलेट करना होता है चीजों को। जैसे अब ये पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल को लगाने के लिए अगर पूछ लेता है आपसे ना, कंपेटिटिव एनवायरनमेंट या कंपेटिटिव उधर के आपके प्रॉफिट मार्जिन के मुतल्लिक आपको आ जाता है कि कितनी उसमें है मार्केट से, आप लोग मार्केट की कंडीशंस कैसी हैं, तो आपको फिर स्पेसिफिकली लगाना पड़ेगा। ये इकोसिस्टम की अभी जैसे मैंने बात आर्कीटाइप्स की है ना, तो वो अब स्पेसिफिकली आपके इस पे लगेगा। यू नीड टू हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ द प्री सीन टू आंसर दैट क्वेश्चन, राइट। सो इंशाल्लाह हम करेंगे। मेरा ख्याल मैं इधर इसको छोड़ देते हैं, वैसे का टाइम भी हो गया हमारा। तो इसको अब आप प्लीज, ये मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा, इसमें 2-4 स्लाइडें मैं आज और ऐड करके ना, जो तो मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। तो आपने प्री सीन को पूरे को याद करना, डोंट टेक इट लाइट के जी ये हमें आता है। और आपको आप आज आपने देख लिया है कि मैं जब आपसे क्वेश्चन पूछूंगा ना, तो उसमें अगर आपके पास बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है तो यू को डील इट विद इट इजीली, और फिर आपको कॉन्सेप्ट की क्लियर है। अगर मेरे आर्कीटाइप्स की जैसे मैं बात कर रहा था ना, अगर आपको पता है कि ऑर्केस्ट्रेशन क्या होती है और कम्प्लेक्सिटी क्या होती है, और आपको पता है कि इस किस बिजनेस इन्वायरमेंट में ट्रेनर ऑपरेट कर रही है, तो यू कुड इजीली प्लेस इट के जी ये शार्क टैंक है, या ये आपका वो जो दूसरा है, जो 4 उसमें क्वाड्रेंट बनाए हुए थे हॉर्नेट्स नेस्ट और लॉयंस प्राइड। तो आपको आराम से समझ आ जाएगी। और फिर इसके समझ आने के बाद भी आपको पता चल जाएगा कि उसमें बिजनेस में कंपटीशन का एनवायरनमेंट क्या है, जो इंडिविजुअल कंपनीज हैं वो कैसे ऑपरेट कर रही हैं। तो उसमें फिर ये चीज़ें आप लिंक कर सकते हैं फिर आपस में ना, हर चीज़ एक दूसरी चीज़ के साथ लिंक है। ठीक है, तो इस तरह से इसको आपने पढ़ना है। प्लीज़ अपने जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं उनको रिवाइज कर लें, नोट्स आपके पास हैं। आपको डिटेल में अगर एक दफ़ा बुक पढ़ ली है तो यू डोंट नीड टू रीड द बुक अगेन, आपको नोट्स पढ़ के समझ आ जाएगी। तो अब जब हम करेंगे तो मैं पहले डिस्कशन आपसे किया करूंगा, और उसके बाद हम जैसे आज आपके साथ किया तो आपको फिर वो मॉडल दिखा भी दिया जाएगा। सारे हम लगाएंगे और आपकी असाइनमेंट्स भी अब ट्रेनर के मुतालिक होंगी। और मैंने ये भी आपको बता दिया कि जो पिछली भी आपने असाइनमेंट्स की हैं ना, उनमें से भी बहुत सारी ऐसी हैं जो डिटो एज इट इज सिर्फ ट्रेनर बीच में लिख दें तो वो अप्लाई हो सकती हैं ट्रेनर पे भी। ठीक है जी, तो चलें इसको अभी इस क्लास को ख़त्म करते हैं। आपकी इनपुट्स मुझे दें। दाऊद आप बताएं कि व्हाट इज योर इनपुट ऑन इट। Are you okay with this style of like approaching the whole thing? Yes sir, I'm fine with it. अगर कोई सजेशन हो ना तो प्लीज फील फ्री कि जी इसको इस तरह नहीं इस तरह होना चाहिए, तो हम उसको चेंज करेंगे। अगर वो इफेक्टिव है और उसमें से कोई बेहतरी आ सकती है हमारे प्रिपरेशन में तो हम करेंगे। मैंने अब आपको बता दिया कि जो मेरा करने का होता है स्टाइल, कि हम पढ़ने के बाद फिर अब दोबारा अप्लाई करते हैं। ठीक है जी, तो वली साहब आप बताएं। इट्स फाइन सर, अब फाइन। हम ना बुक में ना बिल्कुल, अब मैं आपको बता देता हूँ मैंने जो किया हुआ था इसके लिए, वो हमने ये किया हुआ है कि जी कैन द अरेंजमेंट ऑफ अ कोर्स बी टेकन एज अ प्रोजेक्ट, पोर्टर 5 फोर्सेस, पोर्टर की 3 जेनेरिक स्ट्रेटजीज हो गई हैं, ये हम चल रहे हैं सीक्वेंस वाइज। इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस मॉडल ऑफ ट्रेनर, हाँ उस पर एक पेपर है वो मैं आपके साथ आज वो शेयर कर लूँगा। फिर आपका जो वैल्यू जनरेशन का मॉडल है, वैल्यू क्रिएशन का मॉडल है, फिर इकोसिस्टम आर्कीटाइप आ जाएगा, कस्टमर डिमांड इन डिजिटल एरा वो क्या है, यू वांट अ पर्सनलाइज्ड कंसेप्चुअलाइज्ड एनीवेयर टाइप ऑफ, वो जो है ना आपको याद, अब आपको साथ साथ आते जाएंगे वो आपने पढ़े हुए हैं, वो उनको अप्लाई करना है। फिर आपके स्टेक होल्डर्स का है क्या है, इम्पैक्ट ऑफ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी आ जाएगा, हाउ ट्रेनर्स कैन अडॉप्ट द डिस्ट्रक्शन। फिर इसके बाद मैंने आपकी जनाब अली था कि जी
इंटीग्रेटिंग ऑन डिमांड वर्कफोर्स आपकी ये दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगेन, इंटीग्रेटिंग ऑन डिमांड वर्कफोर्स आपने पढ़ी है, ये E2 में है मेरा ख्याल, उसको आपने अप्लाई करना है। फिर आपका एक्विजिशन में आ जाएगा कि कोलैबोरेशन होती है ट्रेनर की किसी आपकी टेक्नोलॉजी की कंपनी के साथ, तो कौन से इश्यूज आ जाएंगे। फिर कोलैबोरेशन विद आपकी हाँ कोलैबोरेशन विद अदर लाइक कंपनीज, जैसे मास्टर क्लास वगैरह है कि आप शेयर्स रिसोर्स जो आपके रिसोर्सेज हैं उनको शेयर करेंगे तो उनकी क्या इम्प्लीकेशन है। तो हम इसको सारी चीज़ों को क्विकली हम इंशाल्लाह जिस तरह ये इसको किया ना गो थ्रू इसको करेंगे और साथ साथ आपको असाइनमेंट मिलती रहेंगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको अपने जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं यू नीड टू बी अपडेटेड ऑन देम, यू नीड टू बी अपडेटेड ऑन द प्री सीन इंफॉर्मेशन, चाहे उसकी समरी बना लें, आपके पास ये सारा इस स्लाइडों में से चाहे एक स्लाइड पे उसकी समरी लिख लें, आपको सारा पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो लेट्स हैव अ शॉर्ट ब्रेक और उसके बाद हम फिर E2 शुरू करते हैं। वलीद उसके बाद आप यू कैन स्लीप लाइक जैसे आपने कहा था आप शहरी के बाद सो सकते हैं। और किसी की कोई इनपुट है तो प्लीज मुझे दे दें, हारिस, सर बाबर, मैं उस्मान। एक बात कहूँ, जी मुझे बोले। तो जब आपने ये शुरू कराया ना, मतलब ये जो रिपीट शुरू कराया कि जिसमें आप चैप्टर बाय चैप्टर बेसिकली इस केस स्टडी को ना चैप्टर्स के ऊपर रन कर रहे हो, एग्जैक्टली उसमें तो मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखें पहले हमने सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े जेनेरिक उसके अंदर, एग्जैक्टली जिसपे हमने उसमें अंडरस्टैंड किया। अब हम उन सारे कॉन्सेप्ट्स को दोबारा रिवाइज कर रहे होंगे ट्रेनर के एस्पेक्ट्स के, इस हाँ केस स्टडी के मैं एस्पेक्ट। बताऊँ, हमने पहले सारे कॉन्सेप्ट पढ़े, फिर हमने पूरा प्री सीन पढ़ा, अब हम उन सारे कॉन्सेप्ट्स को प्री सीन पे लगाएंगे। दिस वाज एक्चुअली द अप्रोच, ठीक है जी। ये हमारी होगी, इसमें हमेशा ही मेरी तो यही होती है। और ये है कि मैं अब बल्कि आपके साथ एक करूँगा, हमारा एक और माशाल्लाह स्टूडेंट है, फेब में था, उसको डिस्टिंक्शन मिली है, उन्होंने उसको बताया नहीं क्या मिली है, उसको बताया एशिया पैसिफिक का जो हुआ है प्रोग्राम, तो उसमें उसको बुला के तो उसकी अनाउंसमेंट की है कि जी ही इज़ प्राइज विनर। तो वो भी आपके साथ करूंगा टू इनकरेज यू, ठीक है जी। ये पहले जो पाकिस्तान में ली थी दैट वाज अनदर स्टूडेंट, अभी ये एक और है, वो नवंबर वाला था, ये नवंबर 20 वाला, अभी ये फेब 21 वाला है। उसको उन्होंने बुला के कुछ दिन 17 तारीख को हुई है सेरेमनी, तो उसको उन्होंने इनवाइट किया था, तो उसने मुझे फिर भेजी कि सर मैं हुआ हूँ। तो आप इंस्पायर होंगे इंशाल्लाह उसको भी देख के। बाबर, यू वांट टू से समथिंग? Sir, it's okay. कंसेप्ट रिवाइज हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू प्री-सीन, तो उसको ठीक थोड़ा हो सा गया, चैलेंज होगा अभी इन चीज़ों को रिवाइज करने में, लेकिन एग्जैक्टली इट्स तो गुड। मैं यही है कि दिस इज नॉट अ वन साइडेड, आई विल आस्क यू, इट